So, in the last session, we talked about the concept of tax avoidance basically and discussed the various judgments or court decrees on the same, specifically on that matter related to, namely, McDowell's case, then Azadi Bachao Andolan's case, and Vodafone International Holdings case specifically. So in that leg, we also talked about that a chapter that is 10A has been introduced specifically from 2018-19 onwards in the Income Tax Act specifically, and these provisions which are known as GAR, General Anti-Avoidance Rules, they have been introduced specifically to tackle the menace of tax avoidance only. So these provisions are basically there to uh, uh, to deal with the issue of tax avoidance specifically. In addition to that, as we discussed in the last video session itself, that it is the double taxation avoidance agreements as well as taxpayer exchange, tax information exchange agreements, and so on. Different things are there to plug the menace of this tax avoidance. So we will be talking about the concept of GAR as well as how it works specifically, what are the provisions entailed covered herein, and the related aspects of GAR. So if we talk about basically the modus operandi, that is the way, the functioning of GAR, basically as we talk, the first thing is GAR is general anti-avoidance rules. So as the name clearly implies, the principal objective, the premises behind introducing GAR is to plug the avoidance rules or the avoidance areas or the mechanisms by which entities try to indulge in tax avoidance. So basically chapter 10A has been introduced into the Income Tax Act that deals with the GAR provisions, and the sections that are covered therein relate from section 95 to 102. सो सेक्शन 95 से 102 तक जो है प्रोविजंस गार के डील करती हैं, और उसमें बेसिकली कवर्ड क्या क्या है, उसमें बेसिकली ये सारी ही चीज़ें कवर्ड हैं जैसे कि हमने बात करी. सेक्शन 95 बेसिक इनेबलिंग प्रोविजन दैट टॉक्स अबाउट व्हेन इट इज़ टू बी टू बी एग्जीक्यूटेड, व्हेन गार इज़ टू टेक प्लेस, किन केसेस में कब गार की प्रोविजंस लागू होंगी, इनेबल होंगी. सेक्शन 96 एंड 97 टॉक्स अबाउट IAA. IAA means impermissible avoidance arrangement. So it is not impermissible avoidance agreement or any other term, impermissible avoidance arrangement. And the section corresponding to this IAA is section 96 as well as 97 of the Act. Then section 98 basically talks about the consequences of indulging in transactions that attract GAR and so on. And section 99 until 102 along with section 144 BA that deals with assessment, as we have talked about. हमने 143 किया था बेस्ट जजमेंट, 144 किया था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 143 थे स्क्रूटिनस असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड सो ऑन, 147 एंड सो ऑन. सो 144 BA एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर किया गया है जो डील करता है बेसिकली गार की असेसमेंट में इन केसेस ऑफ any provisions or any issues attracting GAR. So these are the different overall framework of GAR provisions as far as the legal framework dealing with different sections is concerned. Basically section 96 and 97 deals with IAA, and IAA entails impermissible avoidance arrangements. So basically essentially two conditions are required to be fulfilled or to be held in order to facilitate any transaction or contract to be an IAA. सबसे पहले जो मेन पर्पज है, दैट शैल बी इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग अ टैक्स बेनिफिट. दैट पर्पज कुड बी इन अ पार्ट, दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सच एन अरेंजमेंट, और इट कुड बी द कंप्लीट द फुल बेनिफिट टू बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ सच एन अरेंजमेंट. सो मेन पर्पज जो है या तो कंप्लीटली या इन पार्ट कुछ हिस्से में, दैट शैल बी ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट. एंड सेकेंड इज दैट एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग दीज फोर कंडीशन फॉर सब सेगमेंट्स दैट शुड हैव बीन अकरिंग देयर इन. तो उस ट्रांजैक्शन में, उस अरेंजमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों में से जो सेकंड पार्ट की कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ हैपन हो रही हो, कोई ना कोई चीज़ अकर हो रही हो देयर इन. सो इन दैट केस इट शैल क्वालिफाई टू बी IAA, impermissible avoidance arrangements. Means
अरेंजमेंट विच इज़ नॉट परमिसिबल इनफ। सो वो पहली चीज़ क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल रिलेटेड एंटिटीज़ में हो रही है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यू गाइज रीड इट इन डिफरेंट subject, specifically in MCS and so on, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पढ़ते हो आप लोग, आर्म्स डिस्टेंस, आर्म लेंथ डिस्टेंसिंग पे प्राइसिंग करनी है अगर सब्सिडरी या दो रिलेटेड यूनिट से एक दूसरे को कोई सामान बेच रही हैं एंड सो ऑन. So if the transaction is not done at arm's length, which is basically a mechanism of transfer pricing, then if the transaction or the arrangement represents misuse of the provisions of the act, if there is a suspicion or if there is an apprehension that the principal purpose of such an arrangement is misusing or abusing the provisions of the act. And third and most important is if the transaction lacks commercial substance. So as we talked initially, this is something that differentiate avoidance from planning or that of evasion. Basically, as far as tax planning is concerned, it is also correct in form as well as in substance. But what differentiate planning and avoidance or avoidance from planning is that as far as this avoidance is concerned, the substance lacks although the form prevails. Means जो format है, जिस तरीके से की जाएंगी, जो legal rules है वो follow किए जाएंगे. Avoidance में भी form follow की जाएगी कि क्या क्या procedure होना चाहिए. But जो अंदर substance है, उसकी जो जान है transaction की, वो commercial transaction lack करेगी. मतलब उसका purpose कुछ और होगा. टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स बेनिफिट ही बेसिकली उसका जो पर्पज़ है वो टैक्स बेनिफिट्स लेना या टैक्स अवॉइड करना ही होगा. Finally, as far as fourth condition is concerned, such an arrangement is entered into or carried out in such a manner that is not normally employed for bona fide purposes. So, for example, we talked about complex कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, अलग अलग कंपनीज बनानी, शेल कंपनीज के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शैम ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपन हो रही हैं उसी एक ट्रांजैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली. सो दैट सिग्निफाइज अ काइंड ऑफ मैनर इन विच सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर. सो इफ दीज दो फंडामेंटल कंडीशंस along with subsection 4 or the 4 subsections of a second condition, either of them is happening, then that arrangement or contract or transaction could be referred to as an IAA, impermissible avoidance arrangement. अगर हम इंडियन गार की बात करें तो इंडियन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली गार रिजीम में है क्या. बेसिकली एक अरेंजमेंट कोई भी तरह का हो सकता है जिसका मेन पर्पस, जैसे कि हमने बात की अभी सेक्शन 96 97 के कॉन्टेक्स्ट में भी, उसका मेन पर्पस है टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना, और उसके साथ क्या है वो 4 जो सब सेक्शन हैं सेकंड कंडीशन के अंदर, उनमें से कुछ भी चीज़ हो रही हो. एंड बेसिकली द प्रिंसिपल सब्सटेंस इन एवरी such a transaction would be lacking of commercial substance, and the sole purpose would be to avoiding tax benefit or indulging in tax avoidance. So in such case it would be referred to as IAA as we talked about. So main purpose क्या होगा, जिस चीज़ को ये डील करती है, जिनको ये IAA क्वालिफाई करती है और जिन चीज़ों को गार अप्लाई होगा, that is main purpose of such a transaction shall be or is going to be obtaining a tax benefit. Along with it, these 4 subsections, the 4 subconditions that we talked about, that transaction is not done at arm's length pricing, that is a crucial component of transfer pricing mechanism, or there is an intention or perceived apprehension of misuse of tax provisions, or the transaction lacks commercial substance, or it is not done for bona fide purposes. All of these, if any of these is fulfilled, that leads to impermissible avoidance arrangement. And what are going to be the consequences of indulging into such IAA or such sham transactions? Basically, it could be recharacterizing the arrangement. The arrangement could be set aside, it could be disregarded, corporate structure could be disregarded in such a sense, or treaty benefits ना मिले, जैसे DTAA के अंदर अगर को फैसिलिटीज़ को अवेल किया जा रहा है सेक्शन 90 के अंदर, कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस या साइट जो स्टेटस है एसेट्स का या ट्रांजैक्शंस का, उसको रीअसाइन कर दिया जाए, इनकम या एक्सपेंसेस जो क्लेम किए गए हैं IAA के अंदर उनको रीएलोकेट कर दिया जाए, उनको चार्जिंग ना अलाउ की जाए, या डेट इक्विटी और इनकम एक्सपेंसेस जो भी कम्बिनेशन है उनको अवॉइड किया जाए. सो बेसिकली अगर हम गार प्रोविजंस की बात करें तो ये अप्लाई होती है दोनों ही केसेस में, इंडियन रेजिडेंट्स को भी अप्लाई होती है और नॉन रेजिडेंट्स को भी अप्लाई. सबसे पहले एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर गार अप्लाई होगी
होगा क्या क्या असेंशियल्स है गार के मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए। सबसे पहली, असेसी इज बाउंड नॉट टू गेट इनटू इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। सो असेसी के ऊपर एक बाउंडिंग है ये कि उसको आईएए में इंडल्ज नहीं होना है। हालांकि अगर हम बात करें बेसिकली, हालांकि आईएए में इंडल्ज होना ये लॉ एक्सप्लिसिटली बार नहीं करता उसको, but such a arrangement could be later set aside. So it is basically only at the instance or will of assessing officer AO कि अगर उसको लगे विद द कंसेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दे कैन सेट असाइड सच आईए। अगर उनको लगे कि हाँ ये आईएए हुआ है, इम्परमिसिबल अरेंजमेंट कोई किया गया है जस्ट टू फैसिलिटेट टैक्स अवॉइडेंस और गेन टैक्स बेनिफिट, विद द कंसेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दे कैन डिक्लेयर सच एन अरेंजमेंट टू बी आईएए एंड दैट कुड बी सेट असाइड। उसको खारिज किया जा सकता है। नाउ अनलाइक सेक्शन 92 विच बेसिकली मेक्स इट अ स्यो मोटो मैंडेट कि अपने आप ही अपनी मर्जी से किसी चीज़ का कॉग्निजेंस ले लेना, हियर इन द असेसी in these provisions basically is not bound to take declare his arrangement as IA। assessee जो टैक्स पेयर है वो खुद उसको IA डिक्लेयर नहीं करेगा, अपनी तरफ से नहीं कर सकता। assessing officer के पास पावर है with the consent of commissioner of income tax they can declare such an arrangement to be impermissible arrangement। now so basically it resembles the concept which is given in section 14A as well as along side route AD स्पेसिफिकली। सो बेसिकली वो रेवेन्यू के केस में ही वो रूल अपहोल्ड किया जा सकता है। वो केस भी था रेवेन्यू वर्सेस होलसेम इंडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का, दिल्ली हाई कोर्ट का। और पेनल्टी इन्वोक बेसिकली नहीं की जाती काफ़ी केसेस में जब गार इन्वोक किया जाए। अब हमने बात की डिफरेंट एसेंशियल्स की। कुछ केसेस हैं जैसे कि हमने बात की थी, कुछ केसेस हैं जहाँ पर ये, हालांकि जनरली हम बात कर रहे हैं गार अप्लाइज टू रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, बट कुछ इंस्टेंसेस है जहां पर ये गार अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन सी है? रूल 10U ऑफ इनकम टैक्स रूल्स बेसिकली स्पेसिफिकली नोटिफाइज कि गार जो है वो किन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले गार उस केस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर कोई भी अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो टैक्स बेनिफिट के लिए किया गया है इन द रेलिवेंट ईयर, और जो ओवरऑल जो टैक्स बेनिफिट है टू ऑल द पार्टीज टू दैट अरेंजमेंट इट डज नॉट एक्सीड ₹3 करोड़। सो जब जहाँ पर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर जो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए जो है, और जो जहाँ पर जो टैक्स बेनिफिट अराइज हो रहा है उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू या अरेंजमेंट के थ्रू दोनों पार्टीज़ को या डिफरेंट पार्टीज़ को, अगर वो जो टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का होता है तभी गार अट्रैक्ट होगा। अगर 3 करोड़ से कम है या 3 करोड़ है तो उस केस में गार अप्लाई नहीं किया जा सकता। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो FIIs होते हैं उनके केस में दो कंडीशन सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटली कि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक असेसी हो और उसने कोई और एग्रीमेंट का बेनिफिट ना लिया हो जो सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 में हमने कौन सी बात की थी? जैसे हमने केस जजमेंट्स के केस में बात की थी कि पावर है CBDT को और गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड सो ऑन। सो वो FII उस एग्रीमेंट्स का, वैसे DT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स वगैरह का कोई फ़ायदा ना ले रहा हो, असेसी हो एक, और उसने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया गया हो विद परमिशन ऑफ सेबी स्पेसिफिकली। सो उस केस में जो है गार की प्रोविजन उस पर लागू स्पेसिफिकली नहीं होंगी अगर वो जो सेक्शन 90 या 90A के अंदर जो अरेंजमेंट्स हैं उनका फ़ायदा नहीं ले रहा, असेसी है एक्ट के अंदर और उसने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्टेड किया है, चाहे अनलिस्टेड में भी हो, बट ओनली विद द प्रायर परमिशन बिफोर इन्वेस्टिंग ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलॉन्ग एज प्रोवाइडेड अंडर द सेबी एक्ट। देन कोई ऐसा पर्सन जो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, सो एनी पर्सन हु could be non-resident who has made investment in offshore derivative instruments, so उस केस में भी गार अप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटरी नोट्स, P नोट्स का कॉन्सेप्ट बहुत हाईलाइट होता है अगर टैक्स अवॉइडेंस या इवेजन की बात करें। P नोट क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मॉरिशस है या कोई केमन आइलैंड्स है या कहीं और है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो होता क्या है कि FIIs ने इंडिया के शेयर्स खरीद लिए। सो किया क्या, अब उनके पास तो वो पैसा ब्लॉक हो गया अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, पोर्टफोलियो ले लिया, शेयर्स खरीद लिए स्टॉक मार्केट में जाके, ठीक है।
कंपनीज की सिक्योरिटीज़ होल्ड कर ली, तो वो अपना पैसा उतना 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर कोई डिबेंचर या बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ रखने हैं तो उतनी देर अपना पैसा ब्लॉक करके नहीं रखेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो स्मार्ट प्ले करते हैं, कंपनीज एंड सो एंटिटीज। वो क्या करेंगे कि वो जो सर्टिफिकेट्स अब उनके पास हैं, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स ओनरशिप है उनके पास, अगर इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एनी हाउ, या कोई बॉन्ड्स डिवेंचर एक्वायर किए हैं, तो वो क्या करते हैं फॉरेन मार्केट्स में जाके, से फॉर एग्जांपल वो मॉरिशस की कंपनी है या किसी और की है, सो वो फॉरेन मार्केट्स में जाके लोगों को रिसिप्ट्स इशू कर देते हैं, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स कि इतना अमाउंट आप हमें डिपॉजिट करवाओ और ये रिसिप्ट ले लो। ये रिसिप्ट में क्या है, ये रिसिप्ट बैक कर रही है कि ये जो इंडियन कंपनी के शेयर्स हमारे पास हैं उसको डेरिवेटिव बना के एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया जाता है जिनको बोला जाता है रिसिप्ट, कि ये रिसिप्ट है इतने अमाउंट की, इतने अमाउंट के आपको शेयर्स एलोकेट कर रहे हैं। और शेयर्स कहाँ पर हैं, उन एक्चुअल वहाँ के जो रेजिडेंट हैं मॉरिशस के या यूएस के, उनको शेयर्स नहीं दिए जाते, शेयर्स कंपनी के पास ही रहते हैं, एफआईआई के पास ही रहेंगे जो जिन्होंने लिए। बट वो उन्होंने एक सर्टिफिकेट, एक पर्ची इशू कर दी कि इतना अमाउंट की हम आपको शेयर्स एलोकेट कर रहे हैं इस इंडियन कंपनी के बिहाफ पे, या हम आपसे ये मनी कलेक्ट कर रहे हैं विच इज़ बैक्ड बाय आवर शेयर्स, कि अगर हम लोग आपको पैसा वापस नहीं करते या आपको रिसिप्ट अगर जब भी आप हमें दोगे उसके बदले में आपको पैसा वापस मिल जाएगा, आपने इन्वेस्टमेंट की है इतनी रिटर्न मिल जाएगी। और गारंटी क्या है, गारंटी ये है कि हमारे पास उस इंडियन कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। सो बेसिकली वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये प्रोविजंस अलाउ करती हैं कि वो इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में ही रिसिप्ट्स या सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं या नोट्स ले रहे हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स, एंड बाय वर्च्यू ऑफ P notes or participatory notes they are participating in what, in stock market of India indirectly। वो वहाँ पर FII से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है एक्चुअल में तो ये रिसिप्ट्स के पीछे FIIs ने जो इंडिया के शेयर्स लिए वही है ना, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स तो वही हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ये रिसिप्ट्स इशू हो रही है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनको रिटर्न मिल रही है। सो बेसिकली अंडरलाइंग जो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं रिसिप्ट्स, और इनके ये बैक किसके करी जा रही हैं, असली रिसिप्ट्स जो शेयर्स असली हैं या बॉन्ड्स डिबेंचर जो FIIs होल्ड कर रहे हैं। सो इसका भी बहुत एक इशू चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा है P नोट्स का, पार्टिसिपेटरी नोट्स का, कि ये जो है वो ब्लैक मनी को और अवॉइडेंस को और इवेजन को फैसिलिटेट करते हैं। इंडिया में 2 नंबर का पैसा आ रहा है, कुछ नहीं पता कि ये जो P नोट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है जो FIIs ने वहाँ पर इशू कर दिए बाहर, कि वहाँ पर दाऊद पैसा लगा रहा है या वहाँ पर कौन लोग इसको खरीद रहे हैं। सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लागू की गई हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जैसे KYC नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे इनके केसेस में भी, कि FIIs आगे KYC नॉर्म्स इंप्लीमेंट करेंगे या उनके कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में KYC नॉर्म्स एप्लीकेबल होने चाहिए, कि अगर वहाँ पर जो पर्सन ले रहा है तो पता हो कि वो कौन पर्सन जो है वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। सो अगर एक्सक्लूजन्स की बेसिकली बात करें, सो दीज कैटेगरीज के अंदर रूल 10U के अंदर कोई अरेंजमेंट जिसमें टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ का ही सिर्फ हो रहा है, या FII जो असेसी है एक्ट के अंदर, या सेक्शन 1990A का फ़ायदा नहीं ले रहा, या जिसने लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है विद प्रायर परमिशन ऑफ सेबी स्पेसिफिकली, या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन भी है बट जिसने बाय वे ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्ट किया, जस्ट लाइक दीज केसेस, उन केसेस में गार की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी। क्यों नहीं अप्लाई होंगी, ये बेसिकली इसका बहुत मुद्दा उठा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो जाएगी अगर आप फॉरेनर्स पे ऐसे लागू कर रहे हो गार की प्रोविजन, ठीक है। सो उस केसेस में फिर इनको ये यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दिया गया। सो बेसिकली अगर हम बात करें सेक्शन 97 विच इज़ एन अरेंजमेंट लैकिंग सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस, जो हमने बात की थी कि थर्ड कंडीशन की, हाँ यहाँ पर हमने ये थर्ड कंडीशन बात की है, कंडीशन 2 के अंदर पार्ट है कि इट लैक्स बेसिकली कमर्शियल सब्सटेंस। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, कि इंडिया से पैसा बाहर भेजा, वहाँ से दूसरी कंपनी के थ्रू वो फाइनली पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट हो गया। किया कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी की कंपनी है, उसने बाहर से सर्विसेज मंगवाई, शो किया 1 नंबर में, वहाँ पर पैसा उसको ज़्यादा पैसा पेमेंट कर दी, सो मतलब 2 नंबर का अगर कोई पैसा था तो वो 1 नंबर में बाहर चला गया, वहाँ से किसी और कंपनी के थ्रू वो पैसा इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या खुद ही अपनी कोई कंपनी और खड़ी की और वहाँ पर उस कंपनी से ने कुछ परचेज कर दिया हमारी कंपनी से, या हमें लोन दे दिया, सॉफ्ट लोन दे दिया, एंड सो ऑन। सो बेसिकली राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग इज डन, मतलब गोल गोल घुमाना है। सेम चीज़ यहाँ से ब्लैक मनी थी, वो फॉरेन कंट्री में गई,
तो वहाँ से वो रीरूट होके फिर वापस 1 नंबर में लीगल मनी बन के इंडिया में आ गई। सो बेसिकली इट इज़ नोन एज राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, कि घुमा के राउंड ट्रिप लगा लिया, गोल गोल एक दोबारा चक्कर लगा लिया और पैसे को काले से सफ़ेद कर लिया। सेक्शन 97(2) बेसिकली बात करता है इसके बारे में। इसमें क्या है, ये कोई भी अरेंजमेंट होता है जहाँ पर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग में, और फंड ऐसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं पार्टीज़ के अंदर टू अरेंजमेंट कि सच ट्रांजैक्शन दे डू नॉट हैव एनी ओरिजिनल सब्सटेंस। उनमें कमर्शियल सब्सटेंस बेसिकली नहीं है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्चुअल में नहीं हो रही, बट उसका पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना। फॉर एग्जांपल कोई एफ कंपनी और आई कंपनी इंडियन कंपनी है, एफ कंपनी ने इंडिया में एफडीआई इन्वेस्ट कर दी और यहाँ से फिर उसको वापस ओडीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसको पैसा भेज दिया गया। सो बेसिकली ओडीआई के थ्रू भेजा गया और वहाँ से उसने वापस एफडीआई कर दी हमारी कंपनी में ही इंडिया में। सो यहाँ से 2 नंबर का पैसा गया, ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसा गया, ओवर अंडर इन्फ्लेटिंग बिल्स या ओवर इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, और वहाँ से वापस पैसा आ गया एफडीआई के फॉर्म में 1 नंबर में। देन उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली सेक्शन 97 सब सेक्शन 3 भी है, उसमें बेसिकली अकोमोडेटिंग पार्टी के बारे में बात किया गया है। उसमें अरेंजमेंट क्या होता है, बेसिकली सेक्शन 97 सब सेक्शन 3 अकोमोडेटिंग पार्टी के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। उस केस में भी कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो लैक करता है, और उसमें एक जो पार्टी होती है वो बेसिकली अकोमोडेटिंग पार्टी उसको माना जाता है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि वो सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट कर रही है ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके टू असेसी। वो उस पार्टी का उस ट्रांजैक्शन में कोई प्रिंसिपल रोल नहीं है, वो टैक्स बेनिफिट के लिए ही उसको कनेक्ट किया गया, बनाया गया एंड सो ऑन, उसको बीच में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, so for example here in I company which will be able to get back its fund only and claim interest deduction on loan from C company। accommodating पार्टी के केस में क्या बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल एक आई कंपनी इंडिया में है, उसने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया मॉरिशस की किसी कंपनीज में, ठीक है, और उस कंपनी ने आगे लोन दिया सी कंपनी को, साइप्रस में बनाई गई वो कंपनी, उसको लोन दे दिया, और उस कंपनी ने वापस इंडिया वाली कंपनी को ही लोन दे दिया। तो हो क्या रहा है, इंडिया वाली कंपनी 1 नंबर में इन्वेस्टमेंट जहाँ पर जा रही है इक्विटी शेयर्स में, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, इट कुड बी थ्रू इक्विटी शेयर्स, इट कुड बी थ्रू ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, TBML होता है, TBML मतलब जहाँ पर बिल्स इन्फ्लेट किए जाते हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ाकर शो कर दिए, ज़्यादा पेमेंट कर दी या रेवेन्यू के अंडर बिलिंग कर ली। सो इसने क्या किया, इस केस में इंडिया कंपनी ने इक्विटी बाय की एम कंपनी की, या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। उसने आगे क्या किया, उसके पास पैसा आ गया काफ़ी इक्विटी से, ठीक है, उसने उस पैसे से सी कंपनी को लोन दे दिया, और सी कंपनी ने क्या किया, उसने आगे फिर आई कंपनी को ही लोन दे दिया। तो ये जो सी कंपनी बनी है इसका कोई प्रिंसिपल काम नहीं है इसमें, इट इज़ बेसिकली एन अकोमोडेटिंग पार्टी, इट इज़ क्रिएटेड ओनली जस्ट फॉर डाइवर्जन ऑफ गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स ओनली, कि ये जो टैक्स ट्रांजेक्शन हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इंडियन कंपनी को से सॉफ्ट लोन दे दिया, फ्री में इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया एंड सो ऑन। सो इंटरेस्ट डिडक्शन इंडियन कंपनी क्लेम कर लेगी, ठीक है। सो ये इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, जो वो पैसा कमा रही है, जो जितना साल का उसकी टर्नओवर है या रेवेन्यू जनरेट हुई, उसमें अपने P&L अकाउंट में वो क्या शो करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट। किसको, ये सी कंपनी को, कि मैंने इससे लोन लिया है, इसको मैं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, ठीक है। और पैसा किसका है, इसका खुद का ही था, जो इसने इक्विटी लगाया था उसने उसको लोन दे दिया, और इसने फाइनली वापस वो पैसा इसी को घुमा दिया अपना कुछ कमीशन या जो वट एवर चार्ज करके, ठीक है। सो हुआ क्या, इसको इंटरेस्ट पेमेंट इंडियन कंपनी अपने अकाउंट्स में क्लेम करती रहेगी, जिससे कि उसकी जो फाइनल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट कम हो जाए, इंटरेस्ट अगर चार्ज करोगे तो आपका टैक्स अमाउंट भी उतना कम हो जाएगा एंड सो ऑन रिलेटेड बेनिफिट्स। सो उस केस में इसने फ़ायदा ले लिया, अपने पैसे को ही घुमाकर, अकोमोडेटिंग पार्टी सी क्रिएट करके अपने पैसे को ही घुमाकर बेनिफिट ले लिया, सॉर्ट ऑफ in form of reduced income by payment of interest deduction and so on, and it also got able to get its money back in the form of a loan only. So this is how comes the role of a accommodating company। जो पहला पार्ट किया था राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, उसमें 2 कंपनीज ही प्रिंसिपली इन्वॉल्व होती हैं। हालांकि उस केस में भी ऐसा काम हो सकता है जहां पर राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग बट ये लोन के थ्रू ना हो, फॉर एग्जांपल लोन के थ्रू भी हो सकती है, या फॉर एग्जांपल इस केस में इसने सारी की सारा पैसा FDI इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में। सो दैट कुड ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग एज वेल।